Good afternoon, BPA third sem. Welcome back to the class of Global Business Environment. Okay, we are dealing with the first unit of the Global Business Environment, that is known as the Global Trade. Okay, in the previous class we have discussed about the international business negotiations. Okay, we have discussed about international business negotiation and about diplomacy and etiquettes. Okay, today we will be taking a small topic and the last topic of your first unit, that is known as Global Hacks Model of International Business. Okay, Global Hacks Model of International Business. It was given by Justin Hacks. Okay, it was given by Justin Hacks. It is hex. Hex stands for hexagon. Okay, hexagon has 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it includes six strategic factors or 6 strategies to be successful in international business. That is defined by Justin Hacks. He has defined 6 strategies or 6 factors to be successful in international business. Okay, and these are, first one is infrastructure development. किसी भी देश के लिए अगर उसको अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है, तो उस देश के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला आएगा ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारे ट्रांसपोर्टेशन आ गए, सी, एयर, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वी हैव टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर. So the most important infrastructure related to international trade is the development of transportation facilities. Okay, transportation facilities जब develop होगी, then only you can have the better trade environment. Okay, so first is transportation facilities, which include both all the 3 modes of transport, sea, air and road transport. ओके, नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन आजकल जो है वो इंटरनेट का जमाना है. ठीक है, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क. ओके, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल्स हों, ठीक है, ईमेल्स हों, ठीक है, या फिर इंटरनेट के थ्रू जितना भी कारोबार हो रहा है, दैट शुड बी इंक्लूडिंग द ई कॉमर्स. ओके, ई कॉमर्स एंड ई कम्युनिकेशन, that should be well developed. Next is finance. तीसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, you must have the financial services to promote or provide you the financial assets or the financial help to the businessmen or to the companies that are involved in international trade. ठीक है, बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, फाइनेंस कंपनीज हो गई. ठीक है, ऑल दीज ऑफर्स लोन्स टू द बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर प्रमोटिंग their business, exporting goods and services, and thereby increasing the international trade. Okay, so this was about the infrastructure development. Next is export led growth strategy. जितने भी नेशंस इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, they all wants to increase their export. क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा, when your exports are more than your imports. Okay, so every country, every nation wants to increase the level of exports. Okay, for this you require the greater level of production. Okay, you must have the optimum allocation of the resources for increasing the production. Okay, next is proactive and planned participation. जितने भी नेशंस ट्रेड डील्स कर रहे हैं, उन सबको प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉर नेगोशिएटिंग द ट्रेड डील्स.
ठीक है, जो अपन ने इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस पढ़े, ठीक है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती है उन सबको प्रोएक्टिवली और प्लान तरीके से पार्टिसिपेशन रखना पड़ेगा, तभी वो अपना जो म्यूचुअल बेनिफिट है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया, ओके, 3 और मोर देन 3 कंट्री, इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिव एंड नॉट इन्वॉल्व्ड, देन योर शेयर ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ग्रैब्ड बाय सम अदर कंट्री, ठीक है, क्योंकि अपन ने अप्रोच पढ़ी थी कलेक्टिव और इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, नहीं हो सकता कि सारे कलेक्टिव बिहेवियर के साथ काम करें, सारे देश कलेक्टिव बिहेवियर के साथ ट्रेड करें, ओके, देयर आर नेशंस which believes in the individual behavior, so you need to be proactive and participative to safeguard your interest or share, okay. Next one is एग्रीकल्चर प्रमोशन। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दैट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है, तो उन कंट्रीज को ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके, टू compete in the international market. Next one is import of raw material, okay. अब सब कंपनीज क्या चाहती है कि हम अपना इंपोर्ट, हर देश क्या चाहता है, नेशन क्या चाहता है, वी शुड मिनिमाइज और इंपोर्ट्स, बट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, ठीक है, दैट इज वेरी एसेंशियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बिकॉज ऑल द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल होगा तभी आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, सो देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू वन नेशन टू अनदर। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज सेफगार्ड अगेंस्ट अनरियलिस्टिक इंपोर्ट्स। अब ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इंपोर्ट्स अपन ने पिछले पॉइंट में बात की दैट इंपोर्ट शुड बी देयर फॉर द रॉ मटेरियल बट नॉट फॉर द अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब अननेसेसरी और हार्मफुल इंपोर्ट्स that are not essential for the development of the economy, ठीक है, इस तरह के इंपोर्ट्स पे हमको क्या करना पड़ेगा, सेफगार्ड करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इफ द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज आर इंक्रीजिंग that will result in the adverse balance of payment, because if the imports are increased it will be more than exports and your value will be negative and you will face the adverse balance of payment situation. अब उसको भरपाई करने के लिए आपको वापस एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, ओके। सो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, that is known as global heads model of international business, okay, thank you.